the question which the pattern you are asking. Today's date is 15/10. So the question, suppose it comes like, what should be subtracted from, suppose it is 2x plus 3y. I can't see that. Yes, can't see. अच्छा हाँ, sorry. Ma'am. एक मिनट. Yes. Ma'am, someone is trying to join by name Naman Kumar Gond. Suppose it is minus 12x. I am writing a minus 12x plus 19y. ठीक है. Suppose question इस तरीके का है बेटा. हाँ देखो, there can be any expression. It is not necessary that what expression I have written that should be similar to that one only, है ना. Now remember the pattern should be only the same. For example, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया होता कि मैं 15 से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 5 मिलना चाहिए. ठीक है, 15 से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि मुझे 5 मिलना चाहिए. नाउ यू ओनली टेल मी. अरे यार, ये बार बार आज लूज हो जा रहा है. See, suppose you have a question, what should be subtracted from 15 to get 5. ठीक है, you everybody knows the answer, it will be 10 only. But remember what should be the process, what should be subtracted. So we will have, beta somebody is unmuted. 15 minus, if I am talking about what should be subtracted, so 15 minus, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है what should be subtracted, तो यहाँ पर आ गया माइनस का साइन. Then क्या subtract करना चाहिए, we don't know, it's unknown. So either you put a box, that will be very easy for you because we are doing ultimately the chapter which is related to algebra. ठीक है, तो इसमें बेटा let the number should be x, let the number should be y, ये काम नहीं करेगा. क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में खुद ही नंबर ए बी सी के फॉर्म में है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, ऑलवेज टेक चूज द बॉक्स. ठीक है, so it means you should we will take like that 15 that box should be subtracted from 15 to get 5. so अगर हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, so what should be subtracted from this, so we will have 2x plus 3y in the bracket. Don't forget the bracket, in the bracket, because we are talking about expression. Then minus, because we are what we are subtracting we don't know, so minus, then box. Then what to get, we should get this. So we'll write in this side 12x plus 19y. ठीक है. Now question wants the value. The question wants the value of box. So what to do? Let it be the box here only. Let the box be here only. And हम केवल ट्रांसफर करेंगे किसको, इसको 2x plus 3y को. ये माइनस वाला यहीं रहने दो. ठीक है, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो वो उधर जाएगा तो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में. ठीक है, और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन यहाँ ब्रैकेट में. बेटा डोंट ओपन द ब्रैकेट, रिमेंबर डोंट ओपन द ब्रैकेट. नाउ टेल मी एनी कंफ्यूजन टिल हियर. I have not understood. अच्छा, ओके, हु इज टेलिंग नॉट अंडरस्टूड? मैम गायत्री. गायत्री एक बात बताओ बेटा, इस टाइप की आपने कल एक्सरसाइज 2 ट्राई करी थी? Yes ma'am, I can show you all. अच्छा, लिसन नाउ. Yes. इफ द क्वेश्चन इज टेलिंग, कोई भी बेटा आपको याद होगा कि आपने लास्ट ईयर जब इंटीजर चैप्टर पढ़ा था, और इंटीजर ही नहीं, अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट था कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी एडेड. तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो व्हाट मींस व्हाट, वी डोंट नो ना व्हाट शुड बी दैट. तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं हमेशा, वी assume that let the number should be x, let the number be x, let the number be y, let the number be like, we take it like in this that way. तो यहाँ पर भी हमें यही काम करना है कि we will assume that the number should be a box. Why we are having the box? Because यहाँ पे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सारे के सारे वेरिएबल के फॉर्म में है. देखो यहाँ पे x है, y है, x है, y है. कोई क्वेश्चन करोगे तो उसमें a है, b है. तो डोंट एज्यूम एनी अल्फाबेट हियर, अदरवाइज वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन से मिक्सड अप हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, वी शुड चूज अ बॉक्स.
that let the number that the thing will be box and I have written it what should be subtracted. तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था 2x plus 3y में से क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो आई हैव टेकन बॉक्स सब्ट्रैक्ट करना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने का क्या मिलना चाहिए ये मिल रहा है. तो हमने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में अरेंज किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया. और आपको पता है ट्रांसफर मेथड क्या होती है. ट्रांसफर मेथड इज अ मेथड इन विच यू ट्रांसफर द वैल्यू, है ना. और व्हेन वी ट्रांसफर द वैल्यू एवरीवन नोज दैट वी ओनली चेंज साइन. ठीक है, साइन मीन्स इफ द नंबर इज रिलेटेड टू नेगेटिव वी विल चेंज इट टू पॉजिटिव. इट इज पॉजिटिव देन वी चेंज इट टू नेगेटिव. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम उठा करके उस तरफ भेज रहे हैं. तो यहाँ पर कौन सा साइन है, देयर इज नो साइन, इट मीन्स इट इज प्लस. उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में. और ये चीज यहाँ पर पहले से थी तो हमने तो कुछ भी नहीं किया. ठीक है, नाउ दिस माइनस विल रिमेन लाइक दिस ओनली. नाउ लेट अस सॉल्व दिस. इट मीन्स वी विल ओपन द ब्रैकेट. It is written like this. Now when you open the bracket, you know that every sign will become change. So it will give you minus 2x, it will give you minus 3y. ठीक है, now we will solve it. Minus 12x and minus 2x will give you minus 14x. ठीक है, this is 19y और minus 3y will give you 16y. अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके साथ लगा हुआ है साइन माइनस का. ठीक है, तो if we have to find out the value of only box because we have value in negative, if we want the value of only box, what to do, change the sign of everything here. For example, अगर आपके पास just giving you example, अगर क्वेश्चन आता है x की वैल्यू आ गई 5 माइनस x की वैल्यू 5 आ गई, तो याद रखो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब हो गया -5 जस्ट -1. ठीक है, तो द सेम प्रोसेस यहाँ पर नेगेटिव वाला लेंगे आप. तो जब नेगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये बॉक्स हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 16y. नाउ डू वन थिंग, यू हैव द क्वेश्चन इन योर. It's okay, that process is also fine beta, but the process which I am telling you that is related to the जैसे मेन मेथड होती है ना, जिसके बेस पर आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो. आपने जो मेथड लगाई है ना, वो अगर क्वेश्चन वैसा वाला होता व्हाट शुड बी एडेड वाला, तो सब्ट्रैक्शन इज वेरी वेरी इजी. यहाँ पर भी आप वो फॉर्म कर सकते हो जो आपने किया हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. इट जस्ट डिपेंड कि आप कैसे प्रोसेस को करना चाहते हैं. ठीक है, so now do one thing, you can do any process. एक और प्रोसेस बता दें. if you are, how many of you have understood this? Please raise your hand, how many of you have understood this? Write it, just raise your hand, how many of you have understood this question? Good. Okay, now these students, please put your hand down. Now who has not understood, raise your hand. Ma'am, are you speaking anything? I cannot hear you. हाँ बेटा, ना. From what is the number I speak again? 2a plus 8b plus 10. Plus 10. To get minus 3a plus 7b and plus 16. एक आराम से. To get minus 3a हाँ plus 7b हाँ plus 16. Okay, this is the question. For example, if you have what should be subtracted from 15
टू गेट 25, ठीक है। या अगर आपको कुछ भी ऐसे तरीके से वैल्यू निकालनी है तो आप करते क्या है, कैन यू टेल मी, करते क्या है आप, बताओ जल्दी से। मैम 25 जनरली वी, हाँ बोलो। देखो, दो तरीके का प्रोसेस होता है बेटा, आज से याद कर लेना, ठीक है। अगर व्हाट शुड बी एडेड अगर आया है, ठीक है, व्हाट शुड बी अगर एडेड आता है आपके पास, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है अगर 15, ठीक है, और यहाँ पर आपको बोल रहा है यहाँ पे नंबर है और यहाँ पर आपको वैल्यू दिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस नंबर, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर से इसको माइनस कर देते हैं, 25 माइनस 15 कर देते हैं, आंसर आता है 10, जो कि हमारे पास यहाँ वैल्यू हो जाती है, ठीक है। दिस मेथड यू ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमारे पास व्हाट शुड बी एडेड वाला पूछ रहा है, तब हम लास्ट वाले नंबर से, मतलब इक्वल के बाद वाले नंबर से इसको माइनस करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, लाइक इफ यू हैव लाइक दिस, in that situation what we do, we subtract 15 से 25, ना कि 25 से 15. Are you getting my process, yes or no? Tell me, will you remember Yes, this? ma'am. Yes, ma'am. Yes, this will give you the direct answer, ठीक है। remember, ये चीज याद करने वाली हो गई ना, and I don't wanted to make you remember anything for mathematics, so that is why I was not telling this to you, because ये कभी भी भूल जाते हैं ना, अगर अपन को याद रहा तो ठीक है, अगर हम भूल गए तो फिर उस सिचुएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज वाई आई प्रेफर दोज मेथड विच गिव्स यू ऑलवेज द आंसर, ठीक है, जिसमें कुछ याद ना करना पड़े। सो बट नो वरीज, सो रिमेंबर वन थिंग, अगर व्हाट शुड बी एडेड बोला जा रहा है देन 25 माइनस 15, और अगर व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड बोला जा रहा है देन 15 माइनस 25। तो अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें जो कि हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में कैन यू टेल मी, अगर हम इसको बोले एक्सप्रेशन 1, इसको बोले एक्सप्रेशन 2, तो कैन यू टेल मी 1 माइनस 2 करेंगे या 2 माइनस 1? टेल मी, थिंक। Ma'am, 1 minus 2. I am writing here. And then tell me, किससे क्या माइनस करेंगे? Tell me faster. Think and reply. Which expression should be subtracted from which one to get the answer? Ma'am, 2 minus 1. Amit is telling 2 minus 1. Ma'am, 2 minus. Ma'am, Rahul. तब फिर आप, हाँ ओके, नहीं यहाँ पे मैसेज में आई एम राइटिंग ना, मैसेज में बच्चे लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखो आप समझे नहीं, फिर से वही बात आ गई ना। देखो यहाँ पर बेटा 2 minus 1 नहीं आएगा, 2 minus 1 will be in the situation when you have what should be added, but the question is what should be subtracted, और जब subtracted की बात होगी तो आपको याद होगा मैंने बताया है, yes, इस वाले से ये माइनस होगा, it means it will be 2a plus 8b plus 10, then you will have, मतलब अगर आप आंसर सॉल्व कर रहे हो then it will have minus 3a plus 7b plus 16, इस तरह से आंसर आएगा, ना कि उस तरह से, ठीक है। So now here when you are solving, remember just open the bracket. Open the bracket only. How will you open the bracket? It will give you 2a plus 8b plus 10. ये आपको याद होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ माइनस है अंदर के, all the sign will become changed. So minus 3a will give you plus 3a, 7b will give you minus 7b, 16 will give you minus 16. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes or no? Tell me. Yes, ma'am. Okay. Now see, 2a and 3a will give you 5a. Now 8b and 7b will give you 1b, or you can call it only b. This is 10 or minus 16, it will give you minus 6. This is the answer. Okay, note down this one. See, according to you, what process you like, what process is easy for you. Okay, you can have always that method. Don't think, for mathematics, we have multiple methods for solving one question. तो जो आपको सूट करे हमेशा उसको प्रेफर करो. इट्स नो मैटर कि मैम ने बताया है कि किसने बताया है, ठीक है. तो डिपेंड्स कि आपको पसंद कौन सी मेथड है और आप कौन सी ज्यादा इजी लगती है. बट इस मेथड के लिए बेटा ये याद रखना हमेशा जरूरी है,
ये मैथड, ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि अगर आपको बोला जाए व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, ठीक है, तो दैट इन दैट सिचुएशन अगर हमारे पास लिखा है x प्लस वाई और z ऐसा नंबर है, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ओनली, तो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी व्हाट शुड बी एडेड वाले की, इसकी जो कि मिसिंग है, तो हम z माइनस x करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो यहाँ पर x माइनस z करेंगे, ये वाला माइनस ये वाला। ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अदरवाइज आंसर आपका वही आएगा, आंसर विल नेवर चेंज, आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, आंसर में वैल्यू वही आएंगी, बट डिफरेंस ये आएगा कि हर नंबर का साइन डिफरेंट आएगा। 5a will come in -5, b will come in -6 will come in plus in that situation. Otherwise आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, it will numbers will become same, sign will become change. Okay, now should we continue the next exercise? And remember, tomorrow we will have the exam paper discussion, subjective paper. When you will get it now, today you will be getting your all the papers in your Google Drive, or you can be having in your WhatsApp. Okay? Anyone has any question related to that paper or something? कि कैसे मिलेगा और all? Ma'am, actually I don't know how to get, what to do. The link will be shared. A link will be shared in your WhatsApp. और ये हो सकता है कि आपने जो भी अभी तक जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जो मेल आईडी डाली थी, अगर आपकी मेल आईडी रॉन्ग होगी तो यू विल नॉट गेट योर पेपर, ठीक है, you will not get your paper. Remember, if your mail ID is correct, you will get your paper on your mail ID only. पेपर नहीं मिलेगा आपको, आपकी मेल आईडी पे एक लिंक आएगा, ठीक है, Excuse me, ma'am. एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा, बस उसमें लिख कर आएगा कि एक फोल्डर है वो आपसे शेयर किया गया है, ठीक है, इस तरीके का एक मैसेज आएगा कि ये फोल्डर जो है वो आपको शेयर किया गया व्यू करने के लिए, उसमें व्यू का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जब आप उस फोल्डर को ओपन करोगे, उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट फोल्डर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, ठीक है, एंड व्हेन यू विल ओपन दैट यू विल गेट योर पेपर। यस, somebody was asking something. Tell please. Ma'am, email cannot be wrong, ma'am, because when we enter wrong email, it ma'am writes invalid email. चलो देन ओके, बट बेटा आप लोग पता है गूगल फॉर्म वाले पेपर में तो बहुत सारी मेल आईडी रॉन्ग लिखी है। Ma'am, I have sent something in chat box. टाइमिंग बेटा, टाइमिंग इज नॉट सर्टन, रीजन बिहाइंड, अभी देखो क्लास शुरू हो गई, 12 तक क्लास है, ठीक है, और उसके बाद टीचर्स जो हैं वो अपने टाइम से फ्री होंगे और उसके बाद वो सेंड करेंगे। आज तुम लोग को सेंड करने का टाइम बोला गया है ना, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको 5 पे भी मिल जाए किसी क्लास, कोई टाइम फिक्स नहीं है। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं 5 PM पे सेंड करूंगी अपनी क्लास 8th B में, ठीक है, कोई होगा जो हो सकता है 2 ही बजे सेंड कर दे, है ना, डिपेंड्स ऑन टीचर कि वो कितने बजे आपको भेज रहे हैं, ठीक है, बट आज की डेट में आपको मिल जाएगा। आप मेल पर ध्यान रखिएगा या तो अपने व्हाट्सएप पे। यस आदित्य, यू वांट टू से समथिंग बेटा? No, ma'am. अच्छा, ओके, now will you tell me exercise 12.3 it is now, na? We have 12.3 now. 11. Yes, ma'am. 12.3, fine. Now remember the exercise which we are doing, कहने को it is very easy, I am telling you. If I talk about finding the value, ये सबसे ज्यादा easiest exercise होगी अभी तक की, ठीक है। वैसे को if you understand तो वैसे तो हर exercise is easy, but इसको हम all the categories में अगर हम रखें तो ये सबसे easiest exercise होगी अगर आपने समझ ली तो, and if you will not understand then you cannot understand in any. तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, या तो आप समझ गए तो इट इज वेरी इजी, और नहीं समझे तो कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। तो आपको जब तक समझ में नहीं आता, लेट मी नो, वी विल कंक्लूड टिल यू विल नॉट एंड इट, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन लाइक x² + x, और आई एम राइटिंग योर 2x, और इट इज रिटन योर -5। हमेशा याद रखो बेटा, x² का मतलब होता है x × x, और 2x का मतलब होता है 2 × x. There is a lot of difference in this and in this. Do you agree or not? Tell me. Do you agree what I am telling you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. x² is very different. अगर हम 3 की बात करें तो 3 × 3 gives you 9.
और 2 into 3 gives you 6. Value is totally different. So don't be confused in this. ठीक है? अब now suppose if you have written like x upon 5 या x square upon 5, इसका मतलब ये हुआ x into x और अपॉन में 5. अब नाउ आई एम टेलिंग यू दिस इलेबोरेशन बिकॉज ये आपको अभी यूज करना है इसमें. ठीक है? सो नाउ लुक एट योर क्वेश्चन होगा. जो क्वेश्चन होगा आपका वो इस तरीके से होगा कुछ. फाइंडिंग द वैल्यू मैंने लिख दिया है, सॉरी. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन फॉर x is equal to, it can be 1, it can be 2, it can be -2 or it can be 0 or any value can be written. ठीक है? कोई भी वैल्यू आपको लिख के आएगी और आपको बोला जाएगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उसके लिए. ठीक है? तो आपको याद होगा क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था, बट बहुत छोटा छोटा पढ़ा था. ठीक है? इसमें हम लोग थोड़ा सा लार्ज एक्सटेंड में पढ़ेंगे. नाउ लुक एट हियर वन थिंग. जब भी बेटा यहाँ पर आपको चेक करना है, यहाँ पर अगर यहाँ पर केवल x है तो एग्जाम में क्वेश्चन में जो वैल्यू लिख कर आएगी वो केवल x की होगी. अगर यहाँ पर x और y दोनों हैं इस क्वेश्चन में तो यहाँ पर x और y दोनों लिख करके आएगा. अगर यहाँ पर a और b है तो यहाँ पर a और b की वैल्यू लिख कर आएगी. इट मीन्स द वेरिएबल विच इज यूज्ड इन द क्वेश्चन will only you will get it for the value. ठीक है? तो आपको वही वैल्यू से पुट कर देनी है. आप पुट कैसे करेंगे? नाउ आई एम सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. आप देखो ये 4 वैल्यू लिखी है, आप उसमें से कोई भी एक वैल्यू चूज करिए. नाउ यू डिसाइड विच वैल्यू आई शुड पुट एंड टेल यू. 1, 2, -2 और 0. 0. डिसाइड. -2. -2. चलो एक ओके एक रख लेते हैं पॉजिटिव, एक रख लेते हैं नेगेटिव. ठीक है? ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए. चलो देखो इसमें रखा हमने x स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर. जहां जहां पर x होगा हम वहां पे उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से. तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2x लिखा है, इसका मतलब होता है 2 into x और 2 into x का मतलब होता है 2 into 1 बिकॉज वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर. तो 2 into 1 हो गया देन -5. ठीक है? आई हैव पुट द वैल्यू. नाउ देयर इज नो नीड ऑफ इट. नाउ 1 का स्क्वायर, 1 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर कर लो, कुछ भी क्यूब कर लो, दैट वी विल गेट द सेम आंसर. तो 1 आ गया प्लस 2 into 1 will give you only 2, then -5. Now 2 plus 1 will give you 3, -5 value will give you -2. मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं तो आंसर आता है -2. Those who have understood, write it down yes in the chat box. Those who have understood, please write yes in the chat box. Thank you. Yes. Anyone who has not understood, they can write no simply, huh? Because I will discuss one more question related to it now. ठीक है? So this was beta, this was only related to, okay Ankita, no problem. अभी I will take one more question. So now I am taking another one. ये तो हो गया वैल्यू ऑफ x is equals to 1. अब एक नेगेटिव लेते हैं. ठीक है? आपको क्या करना है, अगर आपको इस फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो आप पहले इस क्वेश्चन को तोड़ लो. एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स प्लस 2x का मतलब होता है 2 into x, देन -5. इस तरीके से क्वेश्चन को कर दिया और इजी बन जाएगा आपके लिए, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा. नाउ x की वैल्यू -2, तो जहां जहां x है वहां पे अब हम क्या रखेंगे -2 प्लस 2 into -2 -5. अब बेटा यहाँ पर यूज होता है बॉड मास. ठीक है? डोंट कंफ्यूज -2 को -5 से ऐड कर दिया, ये सब नहीं करना है आपको. बिल्कुल बॉड मास का ध्यान रखना है कि पहले हमको मल्टीप्लाई वाले टर्म सॉल्व करने हैं, बिकॉज डिवाइड तो यहाँ है नहीं. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. व्हाट इट विल गिव यू, यू ओनली स्पीक -2 when you will multiply, what will get? +4. +4 you will get it. ठीक है? देन उसके बाद ये प्लस एज इट इज रहेगा, रख दिया मैंने. 2 2 4 होता है, आई हैव रिटन इट, एंड ये माइनस भी रहेगा -4. ठीक है? आई हैव रिटन इट -4. नाउ दिस इज -5, लिख दिया. अब नाउ यू हैव प्लस माइनस, व्हेन यू विल ओपन इट, इट विल गिव यू 4 - 4 and that is -5.
तो एक 4 में से दूसरा 4 जब माइनस होगा, या आप बोल सकते हो दोनों डेपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर विल कम -5. इज इट अंडरस्टूड और नॉट? अब जिन्होंने Yes, नो ma'am. लिखा था, Understood. हाँ, जिन्होंने नो लिखा था, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स अंडरस्टूड और नॉट. देन आई टेक अ क्वेश्चन जिसमें ज्यादा वेरिएबल हो. ओके, रितिका सेज यस अंडरस्टूड, अंकिता सेड यस अंडरस्टूड. जिन्होंने नो लिखा था, आई एम टॉकिंग अबाउट जिन्होंने केवल नो लिखा था. फाइन, ओके. सो नाउ अब हम लोग लेते हैं एक डिफरेंट क्वेश्चन वेयर आई विल टेक 2 variables or 3 variables also we can take it. So now I am taking another question. Suppose the question is like 2a square b minus 3bc plus ab. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. इसमें देखो डिफरेंट वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल ले लिए हमने इसमें. ए ले लिया, बी भी ले लिया, सी भी ले लिया. इससे ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कोई नहीं होगा. ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख करके आएगा, फाइंड द वैल्यू फॉर ऑफ दिस. फॉर ए की वैल्यू सपोज आपको दे दिया 1, बी की वैल्यू सपोज दे दिया आपको 2, और सी की वैल्यू एक नेगेटिव ले लेती हूँ सपोज, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए. तो मैंने ले लिया 1, 2 और -3. ठीक है, एक वैल्यू माइनस हो सकता है, 2 माइनस में दी हुई हो, एक प्लस में दी हो सकता है, ऑल पॉजिटिव आए, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, सो नाउ मूविंग अहेड ऑन पुटिंग द वैल्यू हियर. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम इसको एक्सपांड कर देते हैं. कैसे हो जाएगा ये? 2 इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, रख दिया, इंटू बी. ये टर्म खत्म, ये टर्म खत्म, छोड़ दिया उसको. अब नाउ साइन ऑफ माइनस रख दिया. 3bc, तो 3 इंटू बी इंटू सी, ये भी स्टेप खत्म, प्लस ए बी मतलब ए इंटू बी. एनी कंफ्यूजन इन दिस स्टेप? एनीवन? किसी को प्रॉब्लम इस स्टेप में बेटा? ओके, चलो. अब नाउ वी विल पुट द वैल्यू. जहां जहां पर ए है वहां पर ए की वैल्यू, जहां बी है वहां बी की वैल्यू, जहां सी है वहां सी की वैल्यू. तो 2 इंटू, यहाँ पर 2 ए है मतलब 1 इंटू 1, ए 2 बार आ गया, इंटू बी, बी मतलब यहाँ पर आ गया 2, ये स्टेप खत्म, माइनस 3 का 3 हो गया. बी इंटू सी, बी की वैल्यू आ गई 2, सी की वैल्यू आ गई -3, रख दिया. फिर प्लस ए इंटू बी मतलब 1 इंटू 2. हमने जहां पर नेगेटिव आ जाए कोशिश करो ब्रैकेट में रखने की. जहां नेगेटिव आ जाए वैल्यू के साथ बेटा, ट्राई इट फॉर पुटिंग इनसाइड द ब्रैकेट, ताकि वो किसी और नंबर को डिस्टर्ब ना करे. ठीक, नाउ ये हमने रख दिया. नाउ लेट अस सॉल्व इट. 2 1s are 2, अगेन 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4. ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा, और ये 2 2s are 4 हो जाएगा. तो देन आई हैव प्लेस्ड इट हियर 4. This is the sign of minus. I have placed it. Now 2 3s are 6 and 6 3s are 18. ठीक है, और ये नेगेटिव साइन और एक ये नेगेटिव साइन, तो ये हमने यहाँ पर इसको भी ऐसे रख रहने दिया. ठीक है, I have placed it like that only. Now plus 2 1s are 2. इस स्टेप में कहीं पर कोई डाउट है? Anyone has doubt in this step? No, ma'am. Ma'am, I got the answer. Okay, anyone who has problem in this step which I have written just now? No, ma'am. No, ma'am. Okay, fine. Everybody is writing, no doubt. Fine. Thank you, बेटा. So अब बस आगे बढ़ेंगे. ये हो जाएगा 4, ये है माइनस माइनस विल टेक आउट, बाहर पे जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. Then this is +2. I have written it. Now add it all. 18 to 20, 24. Answer would be 24. I hope it is clear to everyone. If not Yes, ma'am, clear, my then answer is please correct. tell me. Okay. Understood, ma'am. Anyone? Okay. Anyone who has any difficulty, any problem still? Okay. Ma'am, I Gayatri explain also it again. written now understood. अच्छा, कहाँ Ma'am, अभी बीच बेटा में वही बात है ना, question देखो पूछा। बीच शुरू में पूछा था ना कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है. शुरू लास्ट में बोलते हो नहीं है समझ में आया. एक एक स्टेप में बोलना चाहिए ना. चलो देखो, एक क्वेश्चन और लेते हैं. अब इसको नहीं समझाएंगे, एक नया ले लेते हैं, उससे सब लोगों को क्लियर हो जाएगा. नाउ लिसन, जिनको समझ में आ गया बेटा, डू इट बाय योर ओन विच क्वेश्चन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. ठीक है, एंड जिनको समझ में नहीं आया है, दे विल बी अंडरस्टैंडिंग बाय मी. ठीक है, so I am writing a question which says find the value of 3m square n square
minus 12 mn plus MNO. This is the question, suppose, ठीक है, where m is equals to 1, n is equals to minus 1, and O is equals to, suppose, 2. Is it fine? Now try this question. Those who have understood, they will try this question, and those who have not understood, they will observe the screen. ठीक है? चलो, let's start it. Now I am first expanding it because it is written here in a wide way. So I am writing is 3m square का मतलब होता है m into m. n square का मतलब होता है n into n. रख दिया minus 12 mn. mn मतलब m into n. रख दिया plus MNO मतलब m into n into O. I believe this is done. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके. अब नाउ आई एम प्लेसिंग द वैल्यू. m की जगह पर 1 रखना है, तो जहां जहां पर m आएगा वहां पे मैंने 1 रख दिया. जहां पर n है वहां पर -1 रखना है, रख दिया -1. एक स्टेप खत्म. माइनस 12 mn. 12 mn मतलब m की जगह पर 1, n की जगह पर -1 रख दिया. देन प्लस के बाद m into n into O. So m will be now 1, n will be -1, O will be 2. ठीक है? Now we will solve it. Now let us see how to get the answer in solving. Now सबसे पहले इस स्टेप को एक एक करके सॉल्व करेंगे. ठीक है? 3 1 are 3. अगेन 3 आएगा क्योंकि 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा वही. ये सारे सॉल्व करने के बाद आपको 1 ही देंगे क्योंकि -1 से -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 आ जाएगा. फिर +1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, 1 ही रहेगा. फिर से 1 ही रहेगा. तो यहाँ कुल मिला के हमारे पास 3 आएगा. ठीक है? देन -12 ऐसा का ऐसा रहेगा. -1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट इट -1 ओनली. ठीक है? ये रख दिया. नाउ प्लस ये 1 into -1 into 2 है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इट -2 बिकॉज 2 1s are 2 and 2 1s are 2, बट वहां पे माइनस साइन विल बी प्लेस्ड हियर. ठीक है? नाउ लेट अस ओनली टेक आउट द ब्रैकेट, द नंबर्स फ्रॉम द ब्रैकेट. 3 12 से 1 का मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो इट विल गिव यू 12 1s are 12 ओनली. प्लस माइनस माइनस विल गिव यू -2. नाउ 12 में से 2 गया, बचा हमारे पास 10 plus 3. Answer would be 13. I have taken the level of this question very like complex way, but आपकी बुक में इतने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है. बुक में थोड़ा सा इजी है. I am taking the question from RS now. ठीक है? This was the question just similar to RS1. Good. अगर आपका इंटीजर स्ट्रॉन्ग है, अगेन टेलिंग यू, अगर आपका इंटीजर स्ट्रॉन्ग है तो आपका ये आंसर कभी गलत नहीं होगा. और अगर आपका इंटीजर अभी भी बेकार है या आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जरूर अटकेंगे बेटा. ठीक है? गुड. नाउ किसका किसका आंसर करेक्ट आया है, विल यू प्लीज रेज हैंड, और यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. आई एम ओके विद दैट. फाइन. देयर आर 4 5 6 students, 7 whose answers are correct. 8 now. Very good, Supriya. Ananya, Amit, Vamika, Ayush, Rahul.